Hello, everyone. Welcome to the Manisha Mishra Show. And today we have another amazing guest with us. Her name is Miss Pallavi Meedha. And let me take the opportunity to first introduce herself. So, she comes with a unique background. She started her schooling from DPS Dalhousie. Then she landed upon doing fashion management, design management, and then she landed upon becoming a parent counselor with reputed institutions like Sri Ram and MMI, which is truly an inspiring journey. And now she is in her entrepreneur journey where she is leading the brand My Duty, helping parents to look forward and look their children in a better manner, providing them all the possible nutrition and supplements required for their better health and growth. So this is a short and crisp introduction about Pallavi ma'am today from my side. Now I would request ma'am to give a brief about herself, because when it will come from her, it will be entirely a different experience for us. So ma'am, thank you so much for joining in, accepting my invitation and being so gracious to be on my show. और मुझे बहुत अच्छे से पता है दैट द पेरेंट्स जो हमारा एपिसोड आज देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा कुछ आपसे सीख के जाएंगे, बिकॉज यू हैव बीन इन द पेरेंट काउंसलिंग स्पेस फॉर सो लॉन्ग, और अब आप पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग देयर चिल्ड्रन द बेस्ट पॉसिबल supplements and nutrition through your brand. So many congratulations to you, ma'am, for the work that you are doing and the impact that you are creating, and thank you so much for being here. Sure, sure. Thank you, Manisha. Thank you for calling me on your podcast. It's a pleasure to be here. So yes, Manisha, I have started my journey long back. 10 years, more than 10 years, I have served as a parent counselor in different schools. And now I'm here as I have my own brand, which is My Duty. We provide nutrition supplements to the kids which are not possible to have with the food, right? So we are living in an environment where what we are eating, especially in India, it's not pure. We don't know what we are eating. So just helping my mothers, all the mothers here, how to handle the tantrums, how to handle your teenagers. We have so many complaints. So how to handle everything is what I am here, as I am myself a mother of two kids, 9 years son and 2.5 years old daughter. Wow, that's so nice. Thank you so much, ma'am, for giving a brief and a very beautiful introduction. So now, with without a further delay, हम अपने question section पे आते हैं, जहाँ पर we will talk about बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है और पेरेंट्स आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं. So the first question which I would love to ask from you is, मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पेरेंट्स के लिए उनका बिहेवियर मैनेज करना, उनका बिहेवियर टैकल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनके बिहेवियर्स चेंज होते रहते हैं, उनके पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, और फिर वो टैंट्रम्स, एंगर, एंजाइटी, ये सारी चीजें उनके बिहेवियर में दिखने लगती है. वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं. ये बहुत मेजर कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स के. तो आप कैसे पेरेंट्स की हेल्प करते हो सर, और हमारे पेरेंट्स कैसे बेसिकली आई वुड से दैट कि कई बार है ना, हम पेरेंट्स भी ना चाहते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं विच लीड टू सच बिहेवियर ऑफ द किड्स. ठीक है. बेसिकली हम पेरेंट्स, बहुत बार आपने पेरेंट्स को सुना होगा धमकी देते हुए, मैं पुलिस बुला लूंगी, मैं तुझे जेल में भेज दूंगी, या जो हम कर नहीं सकते वो बोलना भी नहीं चाहिए बच्चों को. बच्चों को जब हम बहुत ज्यादा टोकने लगते हैं ना मनीषा, सो दे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उनको ऐसा लगता है कि इनको ना म्यूट कर देना चाहिए, ये म्यूट हो जाए थोड़ी देर के लिए. ओके. ठीक है. सो आप खुद पे भी लेकर देखो, या हम हैं या आप हो, अगर आपको कोई पूरा दिन टोके हो, ऐसे मत बैठो, खाना ऐसे मत खाओ, पढ़ लो, आप पूरा दिन अपने बच्चे की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हो. True So that. you have to decide as a mother
कि कौन सा बिहेवियर सही करना है और कौन से बिहेवियर को लेट इट गो करना है। अच्छा, ठीक है। आफ्टर ऑल दे आर किड्स, दे आर नॉट एडल्ट्स, तो कुछ तो वो करेंगे ही। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो दिन में 6 चीजें ऐसी कर रहे हैं तो आपको चूज करना चाहिए कि मुझे अभी 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए ना सिर्फ एक ही चीज पे टारगेट करना है, इसकी ये आदत सुधार लूं, देन आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। वाओ, ग्रेट। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन डू दिस इज एट नाइट। ओके। जब आप अपने बच्चे को सुलाने जाते हो ना, जब हम्म। बच्चा वो आपके साथ, दैट इज द बेस्ट टाइम। आप कभी भी अपने बच्चे के साथ है ना, उस टाइम पे कनेक्ट करके देखो, हम्म। that will that will sink into the heart. That is the ओके। best time that you can, maybe आपको, and for an example, आज आपके बच्चे के स्कूल से कोई कंप्लेन आई है, you want to address it। अगर आप दिन में करोगे जब बच्चा खेल रहा है, आपको सुन भी नहीं रहा, तो उसका कोई असर नहीं होगा। जब अच्छा, बच्चा बैठ के रात को ठीक है। आपके साथ वन है, तब करके देखना, एंड देन लेट मी नो कि वो वर्क किया कि नहीं किया। ओके, नाइस। ठीक है। सो यू नो, और प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो मदर्स है ना, समटाइम्स वी आर लाइक इन द किचन एंड वी आर येलिंग हाँ। फ्रॉम किचन, नहा लो प्लीज, नहा लो, पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो। तो हाँ। द चाइल्ड नॉट एबल टू कनेक्ट विद अस। हम्म। तो द बेटर वे कि बच्चा आपकी बात सुने, उसका हम्म। बेटर वे है कि गो टू योर चाइल्ड, पहले हम्म। देख तो लो बच्चा कर क्या रहा है। मे बी ही इज इन द मिड्स ऑफ अ ड्राइंग। अगर आप एक ओके। किसी टास्क फिट में हो, क्या आप वो टास्क छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते नहीं। हो ना, करते हो ना। सो वी पेरेंट्स, वी हैव टू गिव सम रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड एज वेल। If a child is doing something and if a child is in the midst of something, go to your child, आप मे बी उसके शोल्डर पे टैप कर सकते हो, ओ वाओ बच्चा, व्हाट अ ड्राइंग, इफ ही इज मेकिंग अ ड्राइंग, एंड या। देन कनेक्टेड, वुड यू माइंड, अब आप इसकी ड्राइंग खत्म करके प्लीज नहाने चले जाना, या आप चॉइस दे सकते हो। गिव चॉइसेस टू योर किड्स। सो वुड यू ठीक है। लाइक टू टेक बाथ ओके। नाउ, और वुड यू लाइक टू टेक बाथ आफ्टर योर ब्रेकफास्ट? परफेक्ट। ओके। Let your child decide. We cannot decide everything on our child's behalf. हम्म। या। Okay, so when you talk about now the screen time, हम्म। let's come to, so these were the tantrums, and you know the बच्चे बात सुनते नहीं है। स्क्रीन टाइम आज की डेट में बहुत मेजर कंसर्न डेफिनेटली बन चुका है, एंड फॉर दिस आई वुड से वी पेरेंट्स आर अगेन समवेयर और द अदर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आज माँ बिजी है, तो माँ ने डिसाइड करा कि कोई बात नहीं, आज तो एक्स्ट्रा आधा 1 घंटा देख ले, हम्म। कोई बात। अचानक से हम्म। कल मुझे याद आएगा, यार ये इतना स्क्रीन टाइम देख रहा है, मेरे बच्चे की तो आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, एंड यू हम्म। ट्राई टू स्नैच इट फ्रॉम द चाइल्ड। ठीक है। So the importance is that you need to have a routine for your kids. परफेक्ट। ओके। आपको एक फर्मनेस चाहिए, एक रूटीन चाहिए। जब आप बच्चे को वो रोज वही रूटीन दे रहे हो, एज अ मदर यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड कि मेरे बच्चे को कितना देखना चाहिए। मे बी यू हैव डिसाइडेड हाफ एन आवर, और मे बी यू हैव डिसाइडेड एन आवर, सो ओके। देन स्टिक टू इट। हम्म। आपको बच्चा तंग करेगा, बच्चे ने रोना शुरू करा, तो बहुत बार ऐसा होता है, अच्छा अच्छा बेटा ले ले, थोड़ी देर के लिए ले ले, लेकिन ले ले। देन अब बच्चे ने क्या माइंड में इंटरप्रेटेड किया कि मैं अगर रोऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे फोन दे देगी, ओ। तो नेक्स्ट टाइम हाँ। बच्चा ट्रू। और लाउडर रोएगा, जस्ट टू गेट यू डाउन। हाँ। ठीक है, ट्रू। वही गलत करते हैं। हम्म। बच्चा एक दिन रोएगा, आपको उसको हम्म। डांटना नहीं है, बट फर्मली बोलना है, आई अंडरस्टैंड दैट दैट्स हर्टिंग यू, बट स्टिल हम्म। वी कैन नॉट वॉच द स्क्रीन एनी मोर नाउ। हम्म। So this is how you limit it, and this is how हम्म। the firmness as well. ओके। परफेक्ट। And now, if I come to your question about picky eaters, या। so यहाँ पे I would like to say that कि we mothers, जैसे आप for an example, I think parents are able to connect when I give examples. So my child, I have made लौकी की सब्जी today, maybe, ठीक है। अब मेरे बच्चे ने आज नहीं खाई, तो मुझे लगेगा कि मेरा बच्चा लौकी की सब्जी खाता ही नहीं है। हम्म। इट इज
that way. Maybe आज बच्चे का मन नहीं है, so you should try at least 3 to 4 times to decide that कि मेरा बच्चा ये certain चीज नहीं खाता है. And once you realize कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, then you should work on combinations. Maybe बच्चे ने लौकी की सब्जी ऐसे नहीं खाई, but हो सकता है लौकी के कोफ्ते खा ले, लौकी दाल खा ले, लौकी का रायता खा ले. Maybe लौकी के अंदर आप लौकी की सब्जी किस के डाल दो. So this is how it works. Yeah. Nice. Because there is no shortcut. So Manisha, I work on no shortcuts. There are no shortcuts. बच्चों को सब्जी खिलाना is important, means important. बच्चे को सब्जियां खानी ही खानी. True. Yeah, and I have one more suggestion for the new mothers, that when you are introducing a vegetable to your child, आप लौकी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो ना जब, तो एक हफ्ता कोई और सब्जी मत देना, पूरा सिर्फ एक हफ्ता लौकी देना. अच्छा, okay, that's nice. So let the taste buds enhance. Okay. For लौकी. ठीक, perfect. Yes, थैंक यू सो मच मैम. बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंसाइटफुल आंसर था. सो लेट मी सम इट अप इन जस्ट 2-3 सेकेंड्स. तो आपने बताया कि हम अपने बच्चों को हर टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बिहेवियर्स को. सो उनको चॉइसेस देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो कोई काम कर रहे हैं क्या जिसके बीच में हम अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं. सो हमको अपने मतलब अपने बिहेवियर पे भी बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है. और उसके बाद आपने बताया स्क्रीन टाइम के लिए टाइम डिसाइड करो, फर्म रहने की बहुत जरूरत है. और अपने काम को फीजिबल बनाने के लिए बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ाना इज नॉट गुड, और उसके टैंट्रम्स को एंटरटेन करना इज ऑल्सो नॉट गुड. वाओ, दैट्स ब्रिलियंट. और आपने वो लौकी की सब्जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि एक बार ही नहीं खा रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं है. उसको अदर अदर मेथड्स से दूसरे दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ उसको दीजिए. और एक हफ्ते तक, दिस इज द कैची थिंग, कि अगर आपने कोई नई हैबिट डालनी है, कोई नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चे के साथ, तो उसको एक हफ्ते तक देते रहो सो दैट उसका टेस्ट बड्स डेवलप हो और वो इंटरेस्ट शो करे. Wow, that's brilliant. So thank you so much, ma'am, for giving this beautiful answer. I loved it and I'm very sure जो parents, especially mothers, जो देखेंगे ना, वो सच में ये सारी चीजें फॉलो करेंगे. So thank you. Okay, welcome. My pleasure. तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको बात करनी है कि बच्चे ना, मतलब जैसे आप एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ब्रांड रन करते हो, है ना. और अभी हमने बात भी करी कि हमें कॉम्बिनेशंस पे वर्क करना चाहिए हमको, पर हमें ये चीज श्योर करके रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है. तो आपको क्या लगता है, मतलब क्योंकि आप खुद ही एक ब्रांड रन कर रहे हो, तो सप्लीमेंट्स किस तरह से हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, चिल्ड्रन की ग्रो करने में, और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? So definitely yes, I will let you know. So basically बच्चों की जो है, बच्चों की क्या, बड़ों की, बच्चों की gut health is very important, Manisha. So Okay. when I talk about gut health से है कि बच्चे का डाइजेशन कैसा है, बच्चा जो Okay. खा रहा है वो बच्चे को डाइजेस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो बड़ों Okay. का भी. ठीक है. ठीक है. So now when I am in India, so when I'm in India, I talk about the food. We actually don't know what we are eating. So definitely there are certain vitamins that you have to take supplementation for, like vitamin D. विटामिन डी हमें सिर्फ धूप से मिलता है, और वो भी धूप से, देयर इज अ मिथ कि आप धूप में खड़े हो जाओ तो आपको विटामिन डी मिल रहा है. पहली बात तो आपको सिर्फ 9 से 10 बजे वाली जो धूप होती है ना, सिर्फ वो धूप में खड़े होने से, वो भी विदाउट क्लोथ्स, जहां पे आपके कपड़े हैं वहां पे बॉडी विटामिन डी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी. और आप कितनी देर भी खड़े हो लो, कुछ बहुत ही कम अमाउंट में आपके अंदर विटामिन डी जाएगा, but that is not sufficient for a child, because बच्चों का क्या है, this is a growing stage. ठीक है, उनका brain develop हो रहा है, their bones are building, so for them having a right nutrition is very important. So when I say nutrition, I don't say that you should give multiple things to kids. आप
जैसे कि आपने सिर्फ एक मल्टीविटामिन दे दी जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए, लाइक वी हैव स्मार्टी किड्स फॉर दैट, so which has zero sugar in it, and usme that is a multivitamin. You give only one candy, so it is a candy which a child can take it happily. Wow. From age 2 to maybe 18, yes. So you can take that candy and it is the child will take it happily. Now we have like Coco D3, so this is an MCT. So now supplements भी है ना, कौन सा फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट है और कौन सा वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट है, इसकी नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। आप जब विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेते हो ना, इट इज अ फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट, तो इसको फैट बेस्ड लिया जाता है। तो लाइक वी हैव दिस सप्लीमेंट कॉल्ड कोको D3, जो कि MCT ऑयल बेस्ड है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बच्चों के खाने में रोज 4 ड्रॉप्स डाल दो, इज सफिशिएंट, एंड इट डजंट टेस्ट, इट हैज नो टेस्ट। ओके, ठीक है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है। Now when I see mothers giving sugary drinks to the kids, sorry to say the सिर्फ शक्कर है यार, सिर्फ शक्कर। आप एक टाइम में 1 कटोरी शक्कर खिला रहे हो कि ले बेटा ये खा ले। So for that, definitely we have a kids protein shake where the requirement of protein is fulfilled through that. आप दूध में बच्चों का kids chocolate protein shake है, आप वो दूध मिला दीजिए, it tastes good and it's wonderful and it completes the requirement of the child as well. Wow, brilliant. Right, and then if any child has digestion issues या कुछ gut health problem है, then we definitely have pre-probiotics. Pre-probiotics generally खाने बहुत अच्छे होते हैं. I can tell you the natural source. Also, बच्चों को आप curd खिला सकते हो, sauerkraut खिला सकते हो. Now, what is the sauerkraut? This is a fermented. This is very good if you eat or anybody. So this is full of probiotics. Okay. So probiotics बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर बच्चा नेचुरल फॉर्म में खा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं खा रहा है तो देन अगेन प्री प्रोबायोटिक, इट्स अ पाउडर विच यू कैन मिक्स इन, आप चपाती बना रहे हो उसमें आटे में मिला दो, चीला बना रहे हो तो उसमें मिला दो। रियली इफेक्टिव चाइल्ड्स गट हेल्थ। वाओ, ब्रिलियंट। You cover, I think, all the essential nutrients that are required for children. तो आपके पास प्रोटीन शेक्स भी हैं, आपके पास मल्टीविटामिन्स भी हैं, विटामिन डी भी है, एवरीथिंग। और आपने ये बहुत अच्छा भी है, बिकॉज मम्मा का बहुत कंसर्न होता है, मैम मेरा बच्चा बहुत टीवी देख रहा है, व्हाट डू आई डू? सो यस, डेफिनेटली पहली बात तो स्क्रीन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि देनी नहीं चाहिए, बट जो बच्चों की स्टडीज है, जिनको ज्यादा देर बैठना पड़ता है, those who have online classes, then we have eye vision shield, which really affects the child's eye health. Yes, eye vision shield, that's nice. Iron strips if a child has a low hemoglobin, definitely. Or in between you can just give, in between you can change the supplements and give. कोई भी supplement आप अपने बच्चे को दो, so you should not give it for more than 3 months, then stop that supplementation. Move on किसी और supplement पे जो आपके बच्चे की बॉडी की नीड्स को पूरा कर दे। अच्छा, सो ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया कि हमें 3 मंथ्स तक ही एक सप्लीमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद चेंज कर देना चाहिए। सो डू वी रिक्वायर, मतलब हमको ब्रेक लेने की जरूरत भी पड़ती है या फिर हम स्विच कर सकते हैं? When I'm sorry to interrupt, so when I'm talking that supplements 3 months के लिए, उसके बाद हमें 1 महीने का गैप दे देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। बट लाइक थिंग्स लाइक किड्स प्रोटीन शेक, उनको कुछ नहीं है, यू कैन कंटिन्यू, जस्ट अ नॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, ओके। सो आई थिंक मदर्स को बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, और अगर कोई ऐसा कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूटी में रख रहे हैं, तो आई थिंक दे विल स्टार्ट टेकिंग अ ब्रेक। And one thing I would like to add on here, Manisha, for any concern, we give free of cost consultations. They can call on 86990 86991.
Okay. And we provide free of cost diet and consultations for mothers and the kids if they Wow. want to fall on the system. Wow, that's so nice. So I'll share the link of your website, your products, तो पेरेंट्स मदर्स स्पेशली आप मैम की वेबसाइट पे जाकर उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हो और अपनी चाइल्ड की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो. आप उनको कॉल कर सकते हो फ्री कंसल्टेशन के लिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग. मेनी कांग्रेचुलेशंस. और आई एम वेरी श्योर कि आपके प्रोडक्ट्स से, आपकी सर्विसेज से बहुत सारी मदर्स को हेल्प होने वाली है और बहुत सारे बच्चों का न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो कंप्लीट होने वाला है. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल इम्पैक्ट. थैंक यू. और सबसे स्पेशल चीज ये भी है कि आपने इतने 10 साल तक ऑलमोस्ट बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ काम किया है. तो आपसे ज्यादा बेटर बच्चों के बारे में मतलब कोई और ही समझ पाएगा, क्योंकि मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो उन चीजों को. और जब ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से आएंगे तो वो बहुत ऑथेंटिक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और एक फेथ बेस्ड होंगे. सो थैंक Definitely. यू. So there is, look, the face behind the products is my sister, who is a German-based supplement advisor, ओके. who has created all these formulas, especially for kids as well as for the mothers. So we ओके. are known to be the best nutraceutical brand in India, and we do ship worldwide, right? So, and we claim to have more than 80% of returning rate. Wow, that's brilliant. More than 80% of returning rate is way too high. Yes. Brilliant, brilliant. So nice. Very Thank you. nice. Thank you, Manisha. I'm definitely going to promote your website, your products in my inner circle and to the audiences here as well. Thank you. So Thank you, Manisha. थैंक यू. सो अभी मैम हमने सप्लीमेंट्स, फूड हैबिट्स की बात करी, तो आपने बहुत टाइम तक एज अ पेरेंट काउंसलर भी काम करा. तो आपने बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करा कि बच्चों को कौन से बोर्ड में डालना चाहिए, क्या पढ़ाई का स्ट्रीम चूज करना चाहिए. और आपने मुझे खुद भी बताया कि आपने अपने बच्चे के लिए आईबी बोर्ड चूज करा ओवर सीबीएसई और एनी अदर बोर्ड. सो ये कैसे, मतलब पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को बोर्ड्स, नए बोर्ड्स में डालना या स्विच करने में काफी डिफिकल्टी होती है, उनको समझ नहीं आता. तो आप क्या एडवाइस करोगे उनके लिए कि कौन सा बोर्ड अच्छा है, क्या क्राइटेरियाज माइंड में रखने चाहिए बच्चों को एडमिशन दिलाने के पहले. या Definitely, I will help you. So, Manisha, first thing is that we parents have to decide, because बच्चा बहुत छोटा है, cannot take a decision. या So we have to decide as a parent that what are we expecting from our child? What is that we want our child to be? इतने छोटे बच्चे को कि ये क्या बनेगा या नहीं बनेगा, it is very difficult. या So I will just, I will let you know 4-5 points which will make your life easier to decide that whether we should go for a CBSE school or an IB school. Okay, so the major differences I will list you down. So when you talk about CBSE, so CBSE that easily you will find it around your surroundings, right? CBSE school बहुत common है, आपको जल्दी से मिल जाएंगे. But IB schools are not that common, Maybe हो सकता है बड़े शहरों में तो है, कुछ छोटे शहरों में तो IB schools अभी है भी नहीं. There is a limitation. अगर आपके शहर में 20 स्कूल हैं तो उसमें से हो सकता है 19 CBSE होंगे और एक IB होगा. ट्रू. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग आई वुड से दैट कि जो इनका CBSE स्कूल्स का जो करिकुलम है ना, दैट हैज बीन डिजाइंड फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आपको अपने बच्चे को IIT IIMs में डालना है तो देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द CBSE स्कूल. जो आई वुड से IB का जो करिकुलम है विच इज मोर फॉर द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज. अच्छा, ठीक है. बट IB के बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हैं. That is not the point. ठीक है. Another, when you talk about learning,
सो सीबीएसई स्कूल्स में जो लर्निंग है ना वो थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा बेस्ड होता है, टेक्स्ट बुक नॉलेज, theoretical knowledge. Whereas compare with the IB, so IB has more of an experiential learning, concept based learning होती है, which is actually practical knowledge बच्चे को ज्यादा मिलती है. Hence I find that this is easy because अगर आप अपने टाइम पे, I am passed out from a CBSE school. Yeah, me too. अगर अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे या नहीं थे, हमने रट्टे बड़े मारे हैं बचपन में. True that. Whereas when I see my son in IB, things are pretty different. Oh, okay. Yes, that is an experiential learning is happening. And now, when you talk about CBSE का, curriculum, extra curricular activities, तो वहां पे भी थोड़ी सी limitations है. Definitely बहुत ज्यादा करिकुलर ऐसा नहीं है कि करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है काफी है. व्हेन यू कंपेयर देम टू द आईबी, सो आईबी बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है. ओके, ठीक है. एंड अनदर द लास्ट फैक्टर एंड व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सीबीएसई schools are reasonable. They are easily approachable. IB schools की फीस बहुत high है. So now every parent has a different pocket size. So they have to choose accordingly. ठीक है, okay. Wow. So these are the major differences. What an insightful answer. Let me sum it up in 2 seconds. So मैम ने बताया आपको कोई भी बोर्ड, स्पेशली आईबी बोर्ड को मैम ने क्यों चूज करा अपने बच्चे के लिए ओवर द सीबीएसई बोर्ड. फर्स्ट कि वहां पर हमको सीबीएसई बोर्ड इंडियन स्कूल सिस्टम के हिसाब से और इंडियन कॉम्पिटिटिव स्पेस के हिसाब से पढ़ाई कराते हैं, बट आईबी हमको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करता है. आईबी में हमको ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करा जाता है. आईबी हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ज्यादा हेल्प करता है. एंड ऑब्वियसली द लास्ट पार्ट इज कि आईबी में फीस ज्यादा है रादर देन सीबीएसई. सो डियर पेरेंट्स, आपको जो भी बेटर लगे, आपके हिसाब से जो बेस्ट हो, आप अपने बच्चे के लिए चूज करिए. मैम ने आपको बता दिया कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए आईबी बोर्ड क्यों चूज करा. So thank you so much, ma'am, for sharing this insightful answer. And I'm really sure that people are definitely going to be benefiting out of it. So thank you. Thank you. Ma'am, next question which I would love to ask from you कि हम ना पेरेंट्स में बहुत ज्यादा एक कॉमन चैलेंज देखते हैं कि पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मतलब मैं अपने बच्चे के साथ डील करने में अपना टेम्पर लूज कर देती हूँ या कर देता हूँ, है ना. उनको चिल्लाना, उन पे कभी कभी हाथ उठा देना. सो दिस इज वेरी कॉमन इन इंडियन हाउस होल्ड स्पेशली. तो बट ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. पर और पेरेंट्स को भी बाद में बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने अपने बच्चे पे इतना क्यों चिल्ला दिया, मैंने उसके इतना हार्श बिहेव क्यों किया. तो आप क्या एडवाइस करोगे पेरेंट्स को, कौन सी ऐसी टेक्निक्स अपनानी चाहिए सो दैट वो इस स्पेस में ना जाएं और कामली डील कर पाए अपने बच्चों के साथ. Definitely, Manisha. So basically, we are talking about gentle parenting. आप देखोगे तो आजकल हर कोई जेंटल पेरेंटिंग की बात करता है, लेकिन जो ये जेंटल पेरेंटिंग है, दिस इज एक्चुअली वेरी टफ टू डू इट. एंड द रीजन इज क्योंकि ये जेंटल पेरेंटिंग ना तो मेरी हुई है ना तो आपकी हुई है, ना टीचर्स ने करी है और ना ही पेरेंट्स ने करी है. ठीक है, हमारे टाइम पे ये बहुत कॉमन होता था बच्चे को डांट देना या मार देना. सो दिस इज हाउ वी हैव बीन बॉट अप और हमने यही देखा है और हमें ये नॉर्मल लगता है. सो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू अनलर्न एंड रीलर्न दीज थिंग्स. ओके. तो हमें पहले आज की डेट में इन सब चीजों को अनलर्न करना होगा जो हमने सीखी है, और न्यू चीजें हमारी जनरेशन को रीलर्न करनी पड़ेंगी कि हमें बच्चों को कैसे डील किया जाता है. बिकॉज बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, जो नी
है वो हम पेरेंट्स ही रखते हैं और हम पेरेंट्स ही बिगाड़ते हैं। ट्रू। ठीक है। सो जब भी हम पेरेंट्स ये प्रोसेस में होते हैं ना ऑफ दिस जेंटल पेरेंटिंग, तब हमारे बच्चे जो है ना हमारा बहुत पेशेंस टेस्ट लेते हैं। दे विल प्रोवोक अस, दे विल गेट अस टू दैट पॉइंट कि हम उनके साथ ये करें, उनको हिट कर दें या हम उन डांटे, एंड देन वी फील गिल्टी। ठीक है। सो व्हेन वी आर इन दिस प्रोसेस, we there are some days that we outburst on them. Yeah. So my opinion to the parents is that पहली बात तो उस नौबत तक जाओ ही नहीं कि आपको मारने वाली नौबत तो देखो नहीं आनी चाहिए बच्चे के ऊपर। आई कैन अंडरस्टैंड समटाइम्स वी आर सो फ्रस्ट्रेटेड दैट वी yell on our kids. Yeah. So here it is not kids problem, it is parents problem. तो पहले हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। हमारे इमोशंस में गड़बड़ है, बच्चे के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, सबके ऐसे ही होते हैं, कोई दिक्कत। उस टाइम पे either you should do one thing, you should take a deep breath and then give a response to your child. और अगर आप उस समय अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाए और आपने चिल्ला दिया अपने बच्चे के ऊपर, then what is important is how to make a difference कि जाओ अपने बच्चे से अपोलोजाइज करो। ये एक चीज ऐसी है जो हमें नहीं मिलती है। हमारे माँ बाप मारा भी है ना तो आके कभी सॉरी नहीं बोला। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लाना है विच विल एनहांस योर बॉन्ड विद द चाइल्ड कि अगर आपने गलती करी है तो एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट मिस्टेक एंड दैट विल मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक्स ऑल्सो। अगर वो फ्यूचर में कोई गलती करता है ना तो वो भी यहाँ से ये सीखेगा कि मुझे भी अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है। सो आई नो दैट देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी फैक्टर्स। लोगों को लगता है कि ये तो स्क्रीन पे सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो ना कुछ होता है, बट प्रैक्टिकली आई एज अ मदर completely understand that sometimes we outburst, but that is okay. But what makes a difference now? To go and apologize will make a difference. क्योंकि देखो मारना आज की डेट में, बच्चा जब बच्चे को पहली बार अपने माँ बाप हिट कर देते हैं ना तो उसको इनसिक्योरिटी आती है कि मैं तो अपने घर में भी सेफ नहीं, मैं कहाँ जाऊं। राइट। सो दैट शुड नॉट। ठीक है। ओके। तो आपने बहुत अच्छा टर्म यूज करा है एंड आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए, ये नया टर्म होगा जेंटल पेरेंटिंग, जो हमारी नई हुई है और इसलिए हमको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो जेंटल पेरेंटिंग जो आपने बहुत कंसाइज और बहुत अच्छी तरह से बताया कि बच्चों को प्यार से डील करना। आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको ये देखना है कि मतलब आप कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो सो दैट आप बच्चे पे चिल्लाओ नहीं या उसके साथ गलत बिहेवियर ना हो पाए। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब आपने बोला कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उनसे गलती हो गई तो बच्चों को जाके सॉरी बोलो। और ये बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। सो आई थिंक बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को जरूर से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत मतलब बहुत प्यारा सा जेस्चर है ये। और बच्चे के माइंड में कितना अच्छा इम्पैक्ट और क्या बढ़िया वैल्यू क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में छोटा सा सॉरी बोलना आपकी तरफ से। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने एड्रेस करा कि अगर आप बच्चे को मारते हो घर पे तो उसके माइंड में क्या इंप्रेशन जा रहा है कि हम अपने ही घर में सेफ नहीं है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आई होप पेरेंट्स आप सभी को ये समझ आया होगा कि हमको बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए और हमें बच्चे से सॉरी बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैम ने बहुत अच्छे से बताया। यू कैन डेफिनेटली कुछ और कंसल्टेशन चाहिए आपको तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से रीच आउट कर सकते हो। और मैम अच्छा एक चीज और मेरे माइंड में आ रहा था कि जब हम इस बिहेवियर में जो चेंजेस हैं या इस तरीके के बिहेवियर, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी क्या ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चों में?
देखो मूड स्विंग्स होते हैं। बच्चा अगर भूखा है, उसने अच्छे से कुछ खाया नहीं है, तो हाँ। डेफिनेटली बच्चा चिड़चिड़ करेगा ही करेगा। या उसकी नींद बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, या अगर आप बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा देना शुरू कर दो, तब ये हम्म। प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं डेफिनेटली। सो वी अच्छा। शुड डेफिनेटली लुक फॉर कि आप बच्चे को प्रॉपर एटलीस्ट एक एक चार्ट आता है। इफ यू डोंट माइंड, आई विल ऑल्सो शेयर दैट विद यू। सो व्हाट, कौन सी एज के बच्चों को कितने घंटे की नींद जरूरी है। अच्छा। एंड फॉर द स्क्रीन टाइम ऑल्सो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने छोटे बच्चों को एटलीस्ट 2.5 साल तक तो आपको बच्चों को स्क्रीन देनी ही नहीं चाहिए। अगर हम्म। आप उसके बाद भी दे रहे हो, then it has to be limited for time। एंड एक रूटीन होनी चाहिए, ताकि बच्चे को 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आप एक ये रूटीन फॉलो करोगे ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि दिस इज व्हाट द टाइम आई विल गेट द टैब एंड दिस इज व्हाट आई विल नॉट गेट इट। एंड हम्म। न्यूट्रिशन देखो, अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है, बच्चा हम्म। हैप्पीली प्ले करता है। या। जैसे ही बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे ने अच्छे से खाना नहीं खाया, एज अ मदर हम्म। आपको लग रहा है कि मैंने अभी तो खाना खिलाया है, बट बच्चे का हम्म। पेट नहीं भरा है, दैट मीन्स कि हम्म। कहीं ना कहीं उसकी गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है। सो हम्म। ट्राई एंड फिगर आउट, ट्राई टू कोरिलेट द थिंग्स हम्म। टुगेदर ओके। किड्स। तो बिहेवियर में भी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है। Okay. So I hope this answers a lot of questions to a lot of mothers out there. So thank you so much for sharing this. Ma'am, the conversation is going amazingly well. और I would love to jump into my another question, which is बच्चे ना मतलब हम पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं, है ना? तो मतलब हमें एक आइडियल पेरेंट्स या हमारे नॉर्मल पेरेंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए सो दैट बच्चे जो हैं वो जो हमें देखकर सीखे वो सही सीखे। क्योंकि ना मतलब अब पेरेंट्स बहुत बार मतलब उनको ये प्रॉब्लम रहती है हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ठीक से बात नहीं करता, टाइम पे उठता नहीं है, टाइम पे सोता नहीं है, उसको लेट करने की आदत है। तो ये आदत बच्चे में कैसे आती है? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं जो सीखते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से देख के सीखते हैं। तो आपका क्या टेक है इस बात मनीषा, पे? जैसे कि आपने खुद ही बोला कि बच्चे जो देखते हैं वही हाँ। सीखते हैं। हाँ जी। आप जो बोलोगे, बच्चा उससे नहीं सीख रहा। आप जो करोगे, बच्चा उससे सीखेगा। हाँ आप जी। हाँ खुद जी। कितना हेल्दी खाना खाते हो, बच्चा भी उतना ही खाएगा। आप हम्म। खुद पिज्जा बर्गर्स और पार्टीज कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा बच्चा लौकी तोरी खा ले, तो डेफिनेटली नहीं खाएगा। या। आप ट्रू। खुद अपने रिलेशंस को कैसे हैंडल करते हो, बच्चा भी वैसा ही करेगा। हम्म। आज आप अपने घर पे अपनी मदर इन लॉ को या अपने हस्बैंड के साथ आपके कैसे रिलेशंस हैं, जब आपके घर में देखो कॉन्फ्लिक्ट्स, आई वुड से दैट कि हर पेरेंट में होती है, बट हाउ maturely you handle in front of the kids, that makes हम्म। a difference। हम्म। ठीक है ना? अगर ठीक। आप एज अ पेरेंट उस लेवल पे जाके बात कर रहे हो घर हम्म। में, लेवल आपके वॉल्यूम्स ऊपर हो रहे हैं, तो बच्चा यही सीख रहा है। आप उसके ओके। बाद कितना भी उसको सिखा लो कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, आपने कैसे किया वो इम्पोर्टेंट है। आप अपने से लोअर लेवल के लोगों से कैसे बात करते हो, वो हम्म। बहुत चीज मैटर करती है। ओके। कई बार मनीषा, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स है ना, अननोइंगली कुछ चीजें कर जाते हैं, स्पेशली दैट मदर ने बोल दिया तेरे पापा के पास तो ना हमारे लिए टाइम ही नहीं है। हम्म। यहाँ से बच्चा क्या सीख रहा है? यहाँ से बच्चा सीख रहा है कि मेरे पापा बहुत बिजी है, उनके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है। या हम्म। फादर ने बोल दिया तेरी मम्मी ना बड़ी केयरलेस है, आधी बार चीजें रख के भूल जाती है। हम्म। ये जब हम पेरेंट्स अपने खुद के स्पाउस के लिए या किसी के लिए भी हम डिसरिस्पेक्टफुल बात करने लगते हैं ना, तो वो हम्म। बच्चा भी उसी टोन में बात करना शुरू कर देता है। हम्म। तो ठीक है। इट इज ओके। इम्पोर्टेंट कि हम आपस में पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग एज अ पेरेंट ऐसी होनी चाहिए हम्म। कि बच्चा फिर वही सीखेगा। अगर हम
It is very, very obvious. I'm just giving you a small example. Like I am health freak out person, right? मैं gym जाती हूँ, मैं मीठा नहीं खाना पसंद करती हूँ, या whenever I go to the market, I read the labels, right? Behind. कि इसमें क्या हम्म है? मेरा बेटा भी हम्म वही सीख रहा है आजकल। वो रोज मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग जाता है और हर पैकेट पे देखता है, अरे मम्मा आपको पता है चिप्स में भी शुगर डली होती है। This is the habits that they are picking up from the parents. Yeah, So if a true, mother is true. healthy, if a mother is, if mother is eating healthy and she is giving a knowledge, देखो बच्चे को आपको सिखाना है for the lifetime. हाँ जी। ये आगे options भी है ना मीठे की, या बच्चे ने बाहर जाना है, पूरा टाइम उनके साथ नहीं रहने वाले. So you have बिल्कुल। to teach your child the importance of eating healthy. फिर वो बच्चे के हम्म सामने कुछ पढ़ाओ, he should not be eating. That हम्म is right way of doing it. वाह, आपने कितने अच्छे से बताया कि हम जो भी कर रहे होते हैं बच्चे वो ही देख के सीख रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बातचीत करना हो आपस में, जल्दी सो के उठना हो, हेल्दी खाना हो, सारी चीजें आप जो कर रहे हो वो ही बच्चा सीख रहा है और वो ही उसका एक हैबिट बनता जा रहा है जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है बीइंग पेरेंट्स, के हम खुद क्या बिहेवियरल पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके का एटीट्यूड अपनी लाइफ में मतलब इम्बाइब कर रहे हैं। सो वाओ, बहुत बहुत ही सॉलिड, कंसाइज, क्रिस्प और रिलेटेबल आंसर था। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस। Thank you, बहुत Manish. बहुत सारे लोगों से ये बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगा। सो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए, बहुत सारी चीजें मैं खुद भी सीख रही हूँ। बट हमारा टाइम कंस्ट्रेन है, सो आई थिंक आई वुड लव टू जंप इनटू माय लास्ट क्वेश्चन, विच इज आप क्या टिप्स पेरेंट्स को देना चाहोगे बाय द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिससे वो हैप्पी, हेल्दी, वेल बिहेव्ड, वेल एडजस्टेड चिल्ड्रन रेज कर पाए? So I would like to say that parents, only one advice: give a joyful parenting experience to your child. Happy ओके, parent is equal to happy kids. अगर आप खुद खुश नाइस। हो, तो आपका हाँ। बच्चा ऑटोमेटिकली खुश रहेगा. घर का माहौल वैसा रखो, क्योंकि हम्म अगर सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा बच्चे ना माँ के साथ रहते हैं, बिकॉज वी आर एट होम. अगर एक या माँ खुश नहीं है ना, तो वो बच्चे को खुश रख ही नहीं सकती, बिकॉज यू कैन हम्म नॉट pour लव फ्रॉम एन एम्प्टी कप. जब ट्रू। आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो आप दूसरे को कैसे ही रखोगे? हम्म ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेंटल हेल्थ, चाहे वो बच्चे की हो, हम्म चाहे वो एक माँ की हो. हम्म आजकल सोसाइटी बोलती है यार ये ना माँ बड़ी पार्टियां करती है अपने बच्चे को छोड़ के. क्या गलत है? हम्म अगर आप एक माँ हफ्ते में एक बार अपनी मेंटल हेल्थ के लिए रात को पार्टी, में खुद करती हूँ, हम्म और मुझे इसमें मीडिया पे कहने में भी कोई वो नहीं है. आई एम अ पर्सन, मेरे लिए देखो मेंटल हेल्थ क्या है. आप जब अपने एज ग्रुप के साथ हैंग अराउंड करते हो, अब हाँ। हर किसी की एक जो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस लेवल है ना, दैट इज डिफरेंट. मे बी या मुझे अपने लोगों के साथ हैंग आउट करके अच्छा लगता है, मे बी आपको शॉपिंग करके अच्छा लगता हो. हम्म जैसे भी किसी को, जिसकी भी जैसे भी मेंटल हेल्थ में जैसे भी आपको खुशी मिलती है, प्लीज हम्म डू इट. और उसके लिए अगर मदर्स को एक्सटेंडेड हेल्प लेनी पड़े, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. और हम्म डू नॉट जज अ मदर, गाइज. एक माँ से ज्यादा एक बच्चे का कोई नहीं सोच सकता. एक माँ को एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे, कितनी भी कोई एडवाइस दे ले, कुछ भी कर ले, बिकॉज अ मदर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर माय चाइल्ड. एंड इफ अ मदर इज लीविंग अ चाइल्ड फॉर 2 hours फॉर हर सेल्फ, अगेन अल्टीमेटली अगर वो खुश होगी, तो वो अपने आप अपने बच्चों को डबल खुश रखेगी. राइट. एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से दैट आप है ना अपने बच्चों के साथ एक गेम खेल सकते हो. सो आई बेसिकली प्ले दिस गेम अ लॉट, मनीषा, विद माय किड्स, हम्म विच इज दैट कि आपका बच्चा ओवरऑल एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए. सो देर इज अ गेम कॉल्ड बकेट फिलिंग एंड बकेट डिपिंग.
So now what is this bucket filling? That you tell your child to fill somebody's bucket with love. Now, how do you fill somebody's bucket, your bucket with love while you compliment somebody? आप किसी की आज किसी ने कपड़े अच्छे पहने हैं तो तारीफ कर दो. तो आपने किसी की बकेट में लव डाला है. एंड बकेट डिपिंग, जब आप किसी दूसरे बच्चे के साथ लड़के आए हो, आपने अपना टॉय शेयर नहीं करा, आपने कुछ किसी को गलत बोल दिया है, सो दैट इज कॉल्ड बकेट डिपिंग. सो मैं और अबीर रोज रात को अपने पॉइंट्स काउंट करते हैं, मैं और मेरा बेटा, कि आज हमने कितनी बार दिन में बकेट फिलिंग करी और कितनी बार किसी के साथ बकेट डिपिंग करी. व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, योर चाइल्ड, देखो शुरू में बच्चे इतनी जल्दी ये नहीं पिकअप करते हैं, बट इट इज अगेन एवरीथिंग इज लाइक अ हैबिट. आप रोज करो, इट बिकम्स अ, एंड डू इट इन अ फन वे. सीरियस होकर मत करना, get down to their levels and then do it. Yeah, true, very true. Wow. बहुत आपने बहुत अच्छा बात बोली कि हैप्पी मदर्स और हैप्पी पेरेंट्स मेक हैप्पी किड्स. दैट्स सो नाइस. और मेंटल हेल्थ ऑफ मदर्स स्पेशली, मतलब हाँ, ये सोसाइटी बहुत बार जज करती है कि वो पार्टी करती है, वो किटी पार्टीज करती है, ये है वो है, और इससे ना मदर्स पे बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है. मतलब वो 100% दे रही है अपने बच्चे को, पर फिर भी अगर उसको इस तरीके की कंप्लेंट्स उन्हें मिलती है ना, तो ऑब्वियसली उसको बहुत हर्टफुल फील होता है. और जब वो हर्ट होगी तो ऑब्वियसली उस बच्चे पे, फैमिली पे, हर चीज पे असर पड़ेगा. सो इसलिए So mothers, again, one more message for you. Stop being guilty. Live your life. Motherhood को enjoy करो. Don't take it as a punishment. Enjoy this. This is a beautiful phase. You should have quality time with your kids than the quantity time. आप अगर घर पे और पूरा दिन चिढ़ते जा रहे हो, बच्चे के ऊपर गुस्सा करते जा रहे हो, उससे अच्छा है टेक अ ब्रेक, गो आउट, गेट फ्रेश, और फिर आके अपने बच्चे से मिलो. और ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी है. मतलब अगर हम अपनी फेवरेट चीजें करते रहे, मदर्स स्पेशली अपनी पसंद की चीजें करती रहे, और साथ साथ पेरेंटहुड को, मदरहुड को एंजॉय करती रहे, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी बोर्डम नहीं फील होगा. सो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया. और और बहुत सारी मदर्स को इससे बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैम, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम यू, जो खुद भी 2 बच्चों को रेस कर रहे हैं, और आपके पास इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि हमको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. जब हमारी मेंटल हेल्थ, स्पेशली मदर्स की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बच्चों को भी वो ही चीज रेडिएट होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर. Yes, Manisha sir, here again, so I can go on and on. I'm sorry. So one more thing, like, me and my husband, we go out together once in a week, leaving the kids at home. एक दिन हम बच्चों को घुमाते हैं वीकेंड पे, और एक दिन हम खुद घूमते हैं. So my message again to the mothers, सिर्फ बच्चों के ऊपर मत सोचो, invest in your marriage also. आज मेरी एनिवर्सरी है, मेरे को 13 साल हो गए हैं शादी को. So I can only say that, guys, be happy, invest in your marriage, चाहे आपकी शादी को 40 साल भी क्यों ना हो जाए. True, very true. Stay happy as a couple, क्योंकि हम सिर्फ शादी के बाद बच्चा सिर्फ बच्चे के ऊपर सोचना, बच्चे के लिए करना, which is important, but equally you and your spouse health and their mental health is also important. So please take care. What a beautiful message, and many congratulations to you, ma'am, for your anniversary. Thank you. Okay. So I think we are now wrapping up our session, and by the end of the session, I would just love to take the opportunity to offer my word of thanks to you, ma'am. Thank you so much for being here on my platform, and I really love the whole conversation. And the most important, बहुत अच्छा बात जो मुझे लगी ना, बहुत relatable था हमारा conversation. बहुत सारी mothers बहुत easily हमारी बातों को समझ पाएंगी, और आपने जो टिप्स टेक्निक्स बीच बीच में शेयर करी, वो अपनी लाइफ में भी इम्बाइब करेंगी, सो दैट वो बेटर चिल्ड्रन रेज कर पाए. ऑब्वियसली बहुत सारी मदर्स आर गोइंग टू रीच आउट टू योर वेबसाइट, और न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स को
परचेज करेंगी, ट्राई करेंगी और अपने बच्चे की कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ पे काम करेंगी. So thank you so much, ma'am, for bringing all these beautiful insights today. We loved the conversation. Audience is going to really appreciate and embrace everything here. Thank you so much. And dear audience, I have put the link of the website and ma'am's Instagram handle in the description below, so you can reach out to her through these links. Thank you so much, ma'am. Thank you, Manisha, for calling me. Thank you.